Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. We're going to start with next chapter, that is departure. ठीक है. The departure is just an extension of your जिससे डिस्टेंस जो अभी हमने ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसी का एडवांस वर्जन है डिपार्चर. ठीक है. चलो थोड़ी सी बात करते हैं. डिपार्चर के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए. आई होप यू आर फेमिलियर विद लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मेरिडियन, इक्वेटर, ग्रेट सर्कल, ड्रम लाइन एंड चेंज ऑफ लैटिट्यूड. So you already know that these are our meridians, isn't it? These are our meridians. ये आपको पता है, right? Meridians are semi-great circles joining the north to south pole or south to north pole, isn't it? Meridians. अब आप एक बात और भी देख सकते हैं that all of these meridians converge at north pole and they converge at south pole. So when two meridians travel towards equator, they move away from each other, right? And when these two meridians move towards the pole, either south pole or when they move towards the north pole from equator, then they come close to each other, isn't it? भाई कोई भी दो मेरिडियन जब पोल से, जब यहाँ पे सारी की सारी मेरिडियन से एक ही पॉइंट पे, जब कोई भी दो मेरिडियन पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगी तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाती जाएगी. ऐसा ही है. And the distance between these two meridians will be maximum at the equator. And when these meridians will move from equator towards, let's say, south pole or north pole, they will come close to each other. They will converge into one point. Clear, everyone? कोई डाउट नहीं इस पॉइंट में? Good. And they will come closer as they move towards the pole. ठीक है? Fine. Latitudes की बात करते हैं. आपको पता है that this is 0 degree latitude, which is equator, and as we move towards the north pole we have parallels of latitude, right? इनको बोलते हैं parallels of latitude. These are the latitudes towards north pole and these are the latitudes towards south pole, isn't it? ये आपके south pole की तरफ latitudes हैं. Fine. अब आप एक बात देखो कि till now we have calculated the distance along a great circle only, isn't it? Let's say I ask you to calculate the distance between 15 degree west to 15 degree east at equator. How much will be the distance? बता सकते हैं आप मेरे को? 15 degree west to 15 degree east. 1800 nautical mile. 30 degree, isn't it? 15 degree west से 0 degree आएंगे हम, फिर 15 degree east जाएंगे. 30 degree into 60, you have calculated the distance 1800 nautical mile. That is what? That is the distance from this alpha point to this Bravo point when you are moving along the equator. जब मैं equator के along move करूंगा from 15 degree west से 15 degree east जब मैं जाऊंगा along the equator, the distance is 1800 nautical mile. Agree, everyone? Now, if I ask you that tell me the distance between same longitudes, that is 15 degree west and 15 degree east at 45 degree north. आप देख सकते हैं 45 degree north पे in same दोनों latitudes के बीच में same latitude, sorry, same longitude, same longitudes के बीच में at 45 degree north latitude will the distance be same or different? Decrease. क्या Different. distance उतना ही होगा जितना इक्वेटर पे था? No, distance will be lesser. As you move towards the pole, the distance between the same longitudes will keep on reducing. समझ रहे हैं आप इस बात को? भाई जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो मैक्सिमम तो इक्वेटर पे है ना, जो हमने ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कैलकुलेट किया सिंपल सा फॉर्मूला लगा के. लेकिन अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछता हूं अलोंग एनी लैटिट्यूड बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड,
the distance will not be same. The distance will keep reducing as you move towards the North Pole or South Pole. Yes or no? Similarly, South Pole की तरफ भी ऐसा ही होगा. Agree everyone? As I go towards the South Pole, the distance between two longitudes will keep on reducing. Distance will be maximum at equator. Keep reducing. Distance keep reducing as you move towards the poles. Agree, everyone? And the distance between 2 points will be 0. Distance will be 0 at poles. Distance between two meridians will be 0 at poles. Agree, everyone? दो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो कम होता जाएगा और नॉर्थ पोल पे 0 हो जाएगा. सिमिलरली साउथ पोल की तरफ जाएंगे कम होता जाएगा, साउथ पोल पे आगे 0 हो जाएगा. डिपार्चर का मतलब क्या है? डिपार्चर इज दिस डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिपार्चर. डिपार्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस. और अभी आपने बोला कि सर ये डिस्टेंस तो इक्वेटर पे मैक्सिमम है. इक्वेटर पे जहां पे आपका लैटिट्यूड 0 है वहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम है. और जैसे जैसे आप लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ाते हो, एज यू कीप इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड, द डिस्टेंस इज रिड्यूसिंग. और जब आपके लैटिट्यूड की वैल्यू 90 डिग्री है, डिस्टेंस 0 है. ऐसा ही है. सिमिलरली टुवर्ड्स साउथ आपने बोला कि सर जैसे जैसे आप लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस रिड्यूसेस, राइट? एंड एज द लैटिट्यूड इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, डिस्टेंस इज 0 डिग्री. Distance is 0, not degree. Distance is 0. Agree, everyone? Yes, sir. Can I Yes, say sir. the distance between meridians at any latitude is a function of latitude value. लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है. देखो, जब लैटिट्यूड मेरा 0 डिग्री है तो डिस्टेंस मैक्सिमम है. जब लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है. लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ रही है टुवर्ड्स साउथ, डिस्टेंस कम हो रहा है. लैटिट्यूड जब मेरा 90 डिग्री है तो डिस्टेंस 0 हो गया. Isn't it? Can I say this distance is proportional to cos of latitude? Cos 0 is 1, cos 90 is 0. 0. Some relationship is there. अगर ये बात क्लियर है तो डिपार्चर की थ्योरी तो हो गई हमारी खत्म. ठीक है, इतनी ही बात थी डिपार्चर में. आपको सिर्फ ये समझना है दैट डिपार्चर इज व्हाट? डिपार्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस अलोंग अ स्पेसिफाइड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. कोई भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आप लेते हैं तो किसी भी दो मेरिडियंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिपार्चर. एंड दिस डिस्टेंस डिपार्चर, ठीक है, स्पेशल वर्ड दे दिया मैंने डिपार्चर. दिस डिपार्चर इज अ फंक्शन ऑफ cos ऑफ लैटिट्यूड वैल्यू. लैटिट्यूड की cos वैल्यू पे डिपेंड करेगा डिपार्चर. फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. चलो पढ़ो एक बार, गो थ्रू दिस पॉइंट. Departure in latitude 30 degree is half. डिपार्चर एट लैटिट्यूड 30 degree. 30 डिग्री Yes. इज Half. 0.5. नहीं. डिपार्चर की जो एक्चुअल Oh. फॉर्मूला है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच डिपार्चर डिपेंड्स. क्योंकि देखो, आप ये भी तो समझो ना, डिपार्चर की वैल्यू आपकी मेरिडियंस क्या है इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना. आपने ये दो मेरिडियंस ली हैं या फिर आपने ये दो मेरिडियंस ली हैं, इस पे भी तो डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है ना. Yes. व्हाट आर द मेरिडियंस वैल्यू, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड वैल्यू, उस पे भी तो डिपेंड कर रहा है. बट डू यू एग्री दैट इट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन cos ऑफ लैटिट्यूड वैल्यू. So Latitude. one of the parameter is cos of latitude. इसलिए मैंने प्रोपोर्शनल का साइन दिया, इक्वल टू का साइन नहीं दिया. Oh. एग्जैक्ट फॉर्मूला की अभी हम बात करेंगे. अभी मैंने आपको समझाया कि डिपार्चर विल वेरी विद द लैटिट्यूड वैल्यू. लैटिट्यूड वैल्यू जब मेरी 0 है
तो किसी भी दो मेरिडियंस के बीच की अगर मैं बात करूं तो डिपार्चर डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर, लैटिट्यूड 0। अगर मैं लैटिट्यूड वैल्यू बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज द लैटिट्यूड वैल्यू, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मेरिडियंस विल कीप रिड्यूसिंग। जब मेरा लैटिट्यूड वैल्यू 90 डिग्री है, डिस्टेंस इज 0, सारी की सारी मेरिडियंस मिल गई यहाँ के, यस और नो? तो डिपार्चर इज द फंक्शन ऑफ कोस ऑफ लैटिट्यूड। ओके, अभी बात करते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला की, अभी बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? चलो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिपार्चर। यू नीड टू पुट चेंज इन लॉन्गिट्यूड। चेंज इन लॉन्गिट्यूड, किस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आप डिपार्चर कैलकुलेट करना चाहते हो, you need to take those two longitudes, like the distance, the longitude values. You need to take the change in longitude into 60 obviously to get the distance, great circle distance basically, then In nautical mile. convert into departure by cos of latitude. उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिपार्चर में बाय cos of latitude। देखो ऑब्जर्व करो, उससे दिस इज ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। अगर मैं इक्वेटर पे होता इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, दिस वुड बी माय ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, इक्वेटर पे कितना डिस्टेंस है? दिस डिस्टेंस विल बी लेसर एज आई मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, राइट? व्हेन आई एम ऑन इक्वेटर, लैटिट्यूड इज 0 डिग्री, cos of latitude is cos of 0, 1. Departure is equal to change of longitude into 60, that is equal to great circle distance at equator. Departure is equal to great circle distance latitude 0 पे। देख लो फॉर्मूला से, डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लॉन्गिट्यूड into 60 into cos of latitude, ये है फॉर्मूला। cos of latitude तो 1 हो जाएगा, जहां पे latitude 0 है वहां पे cos 0 is 1, right? And this thing is also your great circle distance as I go away from the equator। तो इन दोनों लाइंस, दोनों longitudes के बीच में जो मेरा डिस्टेंस होगा, now that is a parameter of latitude value। आप जितना दूर जाओगे डिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, मतलब लैटिट्यूड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, cos ऑफ लैटिट्यूड की वैल्यू उतनी कम होगी, मीन्स मेरा डिपार्चर उतना कम होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है एक, बस यही फॉर्मूला आपको याद करना है। चेंज इन लैटिट्यूड इनटू 60, ये क्यों किया? डिग्री को नॉटिकल माइल में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स को नॉटिकल माइल में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू cos of latitude, simple, you will get the departure in nautical mile. Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.